dear students, this is Super 20 Institute and we are doing chemistry questions. So we are at end of the exercise. Question number 14. Okay. So see question number 14. The question given is, if the radius of the octahedral void, if the radius of octahedral void is, so what is the radius of octahedral void is r, and radius of the atom in closed packed structure is capital R. Okay. Derive the relation between small r and capital R. Derive the relation between R and capital R. Okay. So हमें क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड गिवन है एंड हमें उसका रेडियस गिवन है स्मॉल r एंड जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है इन द क्रिस्टल लैटिस और उनका रेडियस गिवन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. तो हमें स्मॉल r एंड कैपिटल R के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. Okay. So this is your octahedral void. तो आपके पास ये जो रेडियस है इस सेंटर का, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स, इनका रेडियस जो है आपको गिवन है कैपिटल R. ओके. एंड दिस इज आल्सो कैपिटल R क्योंकि ये भी तो रेडियस है. दिस इज आल्सो कैपिटल R. अब जो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस गिवन है स्मॉल r. तो यहाँ पे हमारा रेडियस हो जाएगा स्मॉल r एंड ये वाला भी हो जाएगा स्मॉल r. सो नाउ here is a formation of 90 degree angle. तो it is a right angle triangle. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. फाइन. सो this is A, this is B and this is C. In triangle ABC we have hypotenuse कौन सा होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी. तो AB square will be equals to AC square plus BC square. ओके. तो वैल्यूज पुट कर दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB square? 2r plus r. तो ये हो गई 2r square. ओके. AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है सेम कैपिटल R प्लस स्मॉल r. सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर. सो अब देखिए यहाँ पे दिस बिकम 2 प्लस r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर है ना. एंड यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर. दिस इज 2r स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस r स्मॉल r होल स्क्वायर. तो जब हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? अंडर रूट 2r इक्वल्स टू r प्लस r. ओके. तो अब आप यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो. इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आप ऐसे लिखो r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2r माइनस r. तो यहाँ से हम r को कॉमन ले सकते हैं. ये वैल्यू आ गई. स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R रूट 2 माइनस 1. सो
अब आपको पता है √2 की वैल्यू क्या आती है, √2 इज इक्वल्स टू 1.414. सो राइट हियर 1.414 minus 1. So what we have got, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, r is equals to r 0.414. So this is the relation between small r and capital R. Note it down in your notebook. So come to question number 15. ये डायग्राम नोट कर लो. Read down question number 15. So what is given in question number 15? Write down. Copper crystallizes in FCC lattice. Okay, this is numerical type question based upon density of crystal lattice. Okay, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं, numerical based. Okay, copper crystallizes in FCC lattice with H length. What is H length? Cell perimeter. So cell perimeter it is A, because in cube all the perimeters are same. तो ये हमें H length दी है, that means कि हमें A की वैल्यू गिवन है. ओके, सो देखो H length given is 3.61 into 10 raised to power minus 8 centimeter. Show that the calculated density is calculated density is in agreement with its measured value. So what is the measured value? It is given here. The measured value is 8.92 gram centimeter per centimeter cube. So this is your question. तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था. तो first of all we have to write all the information that is given in the question. So क्या क्या information given है? Crystal जो है that is FCC. Okay, so Z is equals to 4, right? H length A is given 3.61 into 10 raised to power minus 8 centimeter. Okay, and हमें चेक करना है जो हमारी कैलकुलेटेड डेंसिटी आएगी will it be equal to the measured value or not. ठीक है, तो यहाँ पे write down the formula Z into NA into volume. So what is volume? A cube. Okay, so write down the formula. So Z is equals to 4 into molar mass. Okay, in this question molar mass is not given, तो आपको बताना चाहिए कॉपर के जो है एटॉमिक मासेस की क्या वैल्यू. मैंने कल आपको बताया था एटॉमिक मास also called molar mass. पर जब आपको क्वेश्चन में अकेला मास गिवन होगा that means आपको मास कैलकुलेट करना है. ओके, मोलर मास एंड एटॉमिक मास डिफरेंट चीज है. आपको मोलर मास कैलकुलेट करने आना चाहिए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? 6.022 into 10 raised to power 23. ओके, एंड ए की वैल्यू क्या गिवन आपको? 3.61 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर होल क्यूब. ओके, तो आपने क्यूब वाली वैल्यू एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये क्यूब वाली वैल्यू
डायरेक्टली सोल्व करो तो आपको क्या करना होता है, इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ कर लेना है इसको। जैसे 3.61 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 4 पे, तो आप यहाँ पे 4 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसी क्वेश्चंस पे सारा टाइम लगाओ। सो कॉपर क्रिस्टलाइजेस, तो आपको गिवन है, हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए 63.5 ग्राम। ओके, आप सॉल्व करो, डू इट इन योर नोटबुक और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। आप उसी तरह इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हो 64 पे। ओके, तो ऐसे आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएंगी। अगर आप इस कैलकुलेशन में इस टर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहते बिकॉज इसका बहुत ही स्मॉल इफेक्ट होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 6 पे राउंड ऑफ कर सकते हो एंड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड आपकी जो बोर्ड की चेकिंग होती है एग्जाम्स की, वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आप पूरे स्टेप सॉल्व करोगे तो अगर आपका आंसर नहीं भी आता कैलकुलेशन तक, अगर आपने स्टेप वाइज किया तो आपको वहाँ तक मार्क्स मिल जाएंगे जिस स्टेप तक आपने सॉल्व किया है। ओके, तो सॉल्व करो अपनी नोटबुक पे। तो क्या आंसर आ जाएगा? ओके, अब देखो हमें क्या गिवन है 8.94 एंड क्वेश्चन भी था 8.92, तो ये इसी के अप्रोक्स वैल्यू है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा? यस, द गिवन द मेजर वैल्यू विल बी इन एग्रीमेंट विद इट्स द कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर वैल्यू। ओके, तो राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is again very important. See next question, question number 16. So what is given here? Analysis show that nickel oxide has the formula क्या फॉर्मूला गिवन आपको? निकल 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00. What fraction? So it is your non-stoichiometric crystal. Okay, for stoichiometric not same. What fraction of nickel? What fraction of nickel exists as nickel 2 positive and nickel 3 positive. ओके, आपको बताया हुआ है एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड है, उसका जो फॉर्मूला है ये है, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन है 0.98 एंड 1. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज nickel 2 पॉजिटिव एंड nickel 3 पॉजिटिव की क्या क्या फ्रैक्शन प्रेजेंट होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है दिस वैल्यू निकल 0.98 1.00. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास रेशियो है 0.98 to 1, तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल यू गेट? 98 to 100. अब देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? निकल 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, निकल 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है एंड ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। ओके, अब हमें इन वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज से। सो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय -2. ओके,
पे देखो ये जो 98 है ये पूरा निकल 2 पॉजिटिव का या निकल 3 पॉजिटिव का नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें निकल 2 पॉजिटिव को कंसीडर करना है x। ओके, अगर ये x है तो निकल 3 पॉजिटिव कितना होगा उसमें 98 माइनस x हो जाएगा ना, 98 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इनके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2 एंड यहाँ पे 98 माइनस x इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद माइनस 200 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 98 इंटू 3 माइनस 3x। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो जब आप इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करो अपनी अपनी नोटबुक में। दिस इज लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 94 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू 94। सो इफ योर x इज 94, हमने यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव को x कंसीडर किया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट निकल 2 पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू x। सो निकल 3 पॉजिटिव विल बी, क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो है वो 98 है, निकल 3 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी 98 माइनस x। तो इसके अकॉर्डिंग निकल की हमारी आ गई 94 एंड निकल 3 पॉजिटिव की आ गई 98 माइनस 94। ओके, तो देखो अब हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव। तो बताओ नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब हमें फ्रैक्शन पूछी है, तो फ्रैक्शन के लिए आप कैसे करते थे, फ्रैक्शन अपॉन होल, जैसे हमारे पास ये पार्ट है और ये पार्ट शेडेड है, तो हम क्या करते थे, टोटल कितना 4 और फ्रैक्शन कितनी है 1, ऐसे कर देते थे ना। अब हमें इनकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, सो यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू, क्या आंसर आया था आपका निकल 2 पॉजिटिव का 94 एंड टोटल कितना गिवन है हमें 98 है ना, टोटल निकल 2 प्लस है निकल 3 प्लस को मिला के, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 98 एंड निकल 3 की आ जाएगी क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 98। ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शन। अगर आपको इनको डेसिमल में चेंज करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ तक भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नोट इट डाउन एंड कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. So question number 17 is, what is semiconductor? Okay, semiconductors. What are the main types of it? Okay, तो मैंने आपको बताया था what are semiconductors. So first of all we have molecular orbitals that will combine to form bands. This band which is higher in energy called conduction band, and this band which is lower in energy called valence band. Okay, and इनके बीच का रीजन क्या कहलाता था, orbital zone. What does it called? This is orbital zone. Okay, so जब हमारे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, एंड दिस गैप इज इंटरमीडिएट बिटवीन
the value of metal and the value of conductors and insulators. ठीक है, कंडक्टर्स में क्या था, ये दोनों बैंड ओवरलैप करते थे एंड सेमी उसमें इंसुलेटर में था कि गैप बहुत ज्यादा था, सेमी कंडक्टर्स में क्या है, गैप जो है इन बिटवीन लाई करेगा। तो ये जो होते हैं सेमीकंडक्टर, ये कंडक्ट करते हैं, बट सिचुएशन क्या है, हमें इनको थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, बट इनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी लो, तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग। सो आफ्टर डोपिंग वी गॉट टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स दैट आर एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो हमें एन टाइप का मिलता है सेमीकंडक्टर, दूसरा हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। So what are N and P type? And these pure conductors are also called pure semiconductors, also called intrinsic semiconductors or ओके, आप इनका नाम याद कर लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड जब इनकी डोपिंग होती है तो तब हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, चलो अब एन एंड पी टाइप के क्या होते हैं, हमने कंसीडर किया था कौन सा सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन था। जब सिलिकॉन के कंडक्टर में सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम एडिशन करते थे आर्सेनिक की, सो सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर एंड आर्सेनिक इज पेंटावैलेंट। तो सिलिकॉन तो बनाएगा 4 बॉन्ड, अब आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर आर्सेनिक इस सिलिकॉन की जगह ले लेता है तो क्या होगा, 4 बॉन्ड तो बना लेगा वो, बट जो एक इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन है, दैट विल रिमेन अनबॉन्डेड। तो वो ऐसे सर्किट में प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल में वो प्रेजेंट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, because this electron have negative charge, so it is called n type of semiconductor, and this free electron is responsible for the conductivity of semiconductor. Okay, तो ये तो n type के थे। p type में हमने क्या पढ़ा था, सेम वी हैव कंसीडर सिलिकॉन क्रिस्टल एंड इसमें हमने ऐड किया था इंडियम को। सो इंडियम इज ट्राइवेलेंट एंड सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट। तो क्या होगा, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स तो होंगे, बट यहाँ पे जब इंडियम आके लग जाएगा, ओके, तो यहाँ पे जब इंडियम आके लग गया, अब इंडियम तो 3 बॉन्ड्स बना सकता है बिकॉज इट हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक जो पोजीशन होगी बॉन्ड की वो वेकेंट रह जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड होल and this is due to the positive charge, so this is called p type of semiconductors, and the semiconductors show conductivity due to the presence of a hole. अब इस होल को फिल करेगा, जब अलग से एक और सिलिकॉन वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाके इस होल को फिल कर देगा। तो ऐसे ही होल्स जो होंगे वो पूरे सर्किट में शिफ्ट होते जाएंगे एंड इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। So write down the question number 18. What is given in the question? Okay. So question is non-stoichiometric cuprous oxide whose formula is C2O, okay, can be prepared in the laboratory, can be prepared in the laboratory. Okay, then what are the information given in this oxide? In this copper to oxygen ratio is
slightly less than 2:1. Can you account for the fact that can you account for the fact that this substance is a p-type conductor? सो अभी तक मैंने आपको पी टाइप कंडक्टर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है वो सारा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कॉपर ऑक्साइड आपको दी हुई है, तो बताओ ये पी टाइप का कंडक्टर होगा या नहीं होगा, वेदर इट इज ऑफ पी टाइप और एन टाइप. ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन. तो बताओ क्या होगा यहाँ पे. सो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, दैट मींस कि जो हमारा ये फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पे आप इनके वैलेंसी लिख सकते हो. कॉपर एग्जिस्टिंग कॉपर पॉजिटिव स्टेट एंड ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग O2 नेगेटिव स्टेट. ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कॉपर 2 पॉजिटिव C2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी इन दिस ऑक्साइड copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, ऑक्सीजन टू कॉपर रेशियो इज लेस देन 2:1. सो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट रेशियो लिख लिया. आपको वर्डिंग में क्या गिवन है, इन दिस ऑक्साइड कॉपर, ओके, कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो, कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो, तो उसको मैंने ऐसे करके लिख दिया. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन्होंने बोला स्लाइटली लेस देन 2:1, दैट मींस कि जो हमारी कॉपर की रेशियो है वो कम है जो हमारी ऑक्सीजन की रेशियो है. ओके, Cu पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन द O2 नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्यों लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. तो मेरे को बताओ एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कितने कॉपर पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस करेगा, बिकॉज इट इज डाइवेलेंट एंड इट इज मोनोवेलेंट. तो ये एक जो आयन होगा वो 2 कॉपर पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस करेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल, होल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, बिकॉज ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये रिप्लेस कर रहा है 2 कॉपर पॉजिटिव आयंस को, बट एटम तो एक ही प्रेजेंट है, तो एक जो जगह होगी आपकी वो वेकेंट रह जाएगी एंड दैट विल क्रिएट अ होल वैकेंसी. तो यहाँ पे क्या होगा, because there is a formation of hole and these holes are responsible for generation of electricity. Okay, so आपको पता है जहाँ पे होल की फॉर्मेशन होती है that are called p type of semiconductors. p types of semiconductors. Fine. So this is your answer. The substance is a p-type semiconductor. So answer is yes. Now comes to next question. Next question number 19.
Question number 19. Okay, so what is given in the question? Ferric oxide, okay, crystallizes in the hexagonal closed packet. Ferric oxide crystallizes in hexagonal closed packing. Okay, HCP structure given है आपको. Then hexagonal closed packed array of oxide ions. Okay, then with 2 out of every 3 octahedral hole. With 2 out of every octahedral hole. Holes occupied by ferric ions. Okay. Derive the formula. कौन सा कंपाउंड है ये? फेरिक ऑक्साइड. सो मैंने आपको बताया था जब हमने क्वेश्चन किया था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड प्रेजेंट, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा. अप्लाई करो. अब क्वेश्चन में गिवन है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन HCP array of oxide ions. ओके, तो HCP स्ट्रक्चर आपको गिवन है. देन of oxide ions with 2 out of every octahedral holes occupied by ferric ions. So ये जो ferric ions है ये कहाँ प्रेजेंट है? octahedral holes में. Okay, by octahedral holes occupied by ferric ions, derive the formula of the ferric oxide. तो कुछ इस टाइप का होगा. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन HCP array of oxide ions. सो ऑक्साइड साइड कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जो ऑक्साइड आयंस है डेट आर फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर is equals to x. तो हमारी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स भी कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं. ओके, सो अगर मेरी ये वाली वैल्यू x है, ऑक्सीजन आयन HCP बना रहे हैं, तो ये मेरी x है, तो मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी हो जाएंगी? x. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन विद 2 आउट ऑफ एवरी octahedral hole occupied by free ions. With 2 out of every 3. तो यहाँ पे ऐड कर लो every 3. ओके, मीन्स कि हमें रेशियो गिवन है 2 out of 3. दैट मीन्स हमें 2/3 of octahedral holes occupied by the ferric ion. दैट मीन्स हमें 2/3 पार्ट बोला है octahedral voids का. तो हमारी रेशियो ये बन गई. अब हमें नेक्स्ट क्या मिला? फॉर्मूला Fv 2/3 x is to, या फिर ऐसे लिखो OX. ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 into O1. अब ये हमारी फ्रैक्शन में है, हमें इसे कन्वर्ट करना सिंपल होल नंबर रेशियो में. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑक्सीजन 1 into 3. तो हमारी रेशियो हो जाएगी Fe2O3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. So note it down. Now see question number 20. So question number 20 में क्या गिवन है आपको? Question number 20. Okay. So देखो classify each of the following. तो हमें classify करना है. Classify whether the given
whether the given compounds are p type or n type semiconductors, तो हमें इनको क्लासिफाई करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज। सो क्या क्या गिवन है हमें? जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, फर्स्ट पार्ट इज जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम एंड बी पार्ट इज, बी में क्या गिवन है आपको? बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन। ओके, तो बताओ जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आता है? कल मैंने आपको लिखवाया था ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स क्या थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, तो जर्मेनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? ग्रुप 13 में ऐड कर रहे हैं प्योरिटी ऑफ इंडियम। तो इंडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा था? दिस इज ग्रुप 14। ओके, तो इंडियम कहाँ पे बिलोंग कर रहा था? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ग्रुप 13 से। तो यहाँ पे हम किस किस को मिक्स करें? ग्रुप 14 एंड ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को। सो इट इज टेट्रावैलेंट एंड दिस इज ट्राइवैलेंट। ओके, तो क्या होगा? 3 वाले बॉन्ड्स तो बन जाएंगे बट एक जो होगा वो बॉन्ड रह जाएगा। तो वो बॉन्ड क्या क्रिएट करेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल। ओके, तो जहां पे होल फॉर्म होते हैं दैट आर कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, नोटेड डाउन। और नेक्स्ट पार्ट बताओ क्या होगा? देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा बोरॉन विद सिलिकॉन। तो बोरॉन कौन से इकाई है? 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एंड सिलिकॉन कहां से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 14 से। तो वहां क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बोरॉन तो बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड्स, बट सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड तो बन गए और एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे ही लेफ्ट रह जाएगा, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिविटी। सो ये नेगेटिव चार्ज के कारण हुआ, तो ये हो जाएगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्या गिवन है 21 क्वेश्चन में? ओके, क्वेश्चन इज गोल्ड whose atomic radius r की वैल्यू गिवन है आपको 0.144 नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटर crystallizes in face-centered unit cell. Okay, what is the length of the side of the cell? What is the length of side of cell? That means आपको सेल पेरिमीटर पूछा है, आपको एज लेंथ पूछी हुई है। So we have derived the relation between R and A। हमने R and A का रिलेशन फाइंड किया था। So FCC के लिए हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी? दिस। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आंसर बताओ। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज के गिवन है, R इज योर 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या थी? 1.414 एंड R की वैल्यू गिवन है आपको 0.414। तो नैनोमीटर में रहने दो यूनिट। ओके, तो बताओ कैलकुलेट करके आपकी A की वैल्यू क्या आ रही है?
So you will get 0.407 nanometers. That is the length of side of the cell. That means H length. Okay, and you get 0.407 nanometer. Okay, now question number 22. See question number 22 in your exercise. So what is given? This is question number 22. Okay. So in question number 22, in terms of band theory, किसके लिए पढ़ी थी हमने band theory? For the classification of conductor, insulator and semiconductors. So in terms of band theory, we have to tell that what is the difference? What is the difference? What is the difference between a conductor, okay, and insulator? And आपको नेक्स्ट पार्ट में पूछा है बी में between a conductor and semiconductor तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? We will explain it with the help of diagram. Okay, तो हमने डायग्राम्स बनाए थे. So देखो, first of all metals, then insulators, then semiconductors. Okay, so conductors में कैसे होता था? एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होता था एंड एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता था एंड ये दोनों बैंड जो थे वो ओवरलैप कर रहे थे. ओके, सो दिस रीजन इज ओवरलैपिंग एंड हियर इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ पे चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, एंड यहाँ पे कंडक्शन होगी. ओके, इंसुलेटर में क्या था? Here forbidden zone is not present, और जो अगर प्रेजेंट में होगा तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा. ओके, ताकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली जंप कर लेंगे. ओके, नाउ इंसुलेटर्स में क्या था? ये जो कंडक्शन बैंड है एंड वैलेंस बैंड है, ये जो कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड है, इनके बीच का गैप बहुत लार्ज होगा. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड forbidden zone. So this gap is very much large so that electron will not jump from valence band to conduction band. Okay, semiconductors में क्या था? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस था ये बहुत कम था. मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है एंड अगर हम इस ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इसको अगर हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे. ओके, तो ये क्या करेगा? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. कंडक्टिविटी इसकी हम इंक्रीज करने के लिए डोपिंग भी करते हैं. ओके, तो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो सी क्वेश्चन नंबर 23. तो यहाँ पे लिख लेना बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है. And this is called as band theory. Okay, now see question number 23.
So what is given in question number 23? Explain the following terms with suitable example. So first of all given is Schottky defect. So कहाँ पढ़ा था हमने Schottky defect? When we discuss about the imperfections in crystal, वहाँ पे हमने defect पढ़ा था Schottky defect. So it is a type of vacancy defect. Okay? And ये कहाँ पे होता है? Ionic crystals में. देखो यहाँ पे it is shown by ionic crystal. So what is this defect? In this type of defect same number of cations, okay, same number of cations and anions are missing from their position. तो मेरे को बताओ अगर सेम नंबर ऑफ केटाइन एंड अनायंस मिसिंग है अपनी पोजीशन से तो क्या चार्ज बैलेंस होगा या इनबैलेंस होगा? बिकॉज सेम नंबर मिसिंग है तो क्या होगा? चार्ज इज बैलेंस. तो चार्ज बैलेंस होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी. टू मेंटेन electrical neutrality. Okay, in this type of defect same number of cation and anions are missing from their position to maintain their electrical neutrality. Okay, now next is given next defect. आपको एक और चीज याद रखनी है. शॉर्टकी से आपको याद रखना है शॉर्टेज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर इज डिक्रीज इन डेंसिटी. ओके, देयर इज डिक्रीज इन डेंसिटी. नेक्स्ट पूछा हमसे फ्रेंकेल डिफेक्ट. सो क्या था इस डिफेक्ट में? ये भी हमने पढ़ा था किन में? आयनिक क्रिस्टल्स में. एंड बोथ दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ओके, तो ये भी किसमें होता है? आयनिक क्रिस्टल्स में. सो यहाँ पे क्या था? दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन some of the cations that are smaller in size are missing from their position and they will occupy the interstitial sites. ओके, जब cation अपनी पोजीशन से मिसिंग हो गए एंड इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे देन द डिफेक्ट अराइजेस कॉल्ड फ्रिंकल डिफेक्ट. सिंस इन दिस क्रिस्टल नो आयन विल लेफ्ट देयर पोजीशन लेफ्ट द क्रिस्टल. तो इसमें से किसी भी आयन ने क्रिस्टल को लेफ्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन को लेफ्ट किया और इंटरस्टिशियल साइट पे जाके ऑक्यूपाई कर ली. तो क्या होगा? डेंसिटी विल रिमेन सेम. डेंसिटी रिमेन सेम. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट डिफेक्ट पूछा है उन्होंने अबाउट इंटरस्टिशियल्स एंड एक्सेंटर्स. सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज सेम एज फ्रिंकल डिफेक्ट बट क्या होगा? ये आयनिक क्रिस्टल में होता है. सी मैं ये रब कर देती हूँ. ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है दैट इज सेम एज फ्रिंकल डिफेक्ट बट यहाँ पे क्या होगा? इट वाज शोन बाय नॉन आयनिक क्रिस्टल. ओके, और डेंसिटी भी सेम रहेगी. एंड यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ द cation की जगह सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सम ऑफ द constituent particles are missing from their position and occupy the interstitial sites. What
electrolytes, they are also called voids, empty spaces that are present in a crystal. Okay, तो यहाँ तो हो गया. लास्ट डिफेक्ट के बारे में इन्होंने पूछा है, that is what is F center, and this question is very very important. This come in 2013 exam of CBSE. Okay, तो क्या पूछा जाता है F center. तो F center के लिए हमने एग्जांपल पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का. तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, let us suppose it is the crystal of NaCl. तो यहाँ पे मैं इसका ऐसे शो करती हूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. सेम इसी तरह Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड ये रिपीट करेंगे यूनिट्स अपने आप को. तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको हीट करती हूँ इन द इन्वायरमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके हम वेपर्स बनाएंगे और इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. अब ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या करेगा, अपने साथ इस क्लोरीन को बाइंड कर लेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस रह जाएगी. ओके, देन यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो जाएगी Na पॉजिटिव, इसने Cl नेगेटिव को लिया तो ये बन जाएगा NaCl, एंड यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ इट विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ दिस Cl नेगेटिव. ओके, इसलिए एनाइन वैकेंसी को ऑक्यूपाई किया. अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच ऑक्यूपाई दिस वेकेंट साइड, दिस साइड इज कॉल्ड F center और फार्मी सेंटर. ठीक है, इसलिए इसको हम F center बोलते हैं, एंड दिस साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल, फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल. दैट इज व्हाई सोडियम क्लोराइड तो हमारा व्हाइट कलर का होता है, बट जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है येलो में. ओके, व्हाइट टू येलो कलर शो करेगा, व्हाइट टू येलो कलर. ओके, see question number 24. So question number 24 is a numerical type question. Aluminium crystallizes in cubic closed pack structure. Okay, and metallic radius is given, metallic radius. What is the radius given, 125 picometer. तो मैंने कल आपको बताया था पिकोमीटर को कैसे चेंज करना है, 125 into 10⁻⁻⁻12 मीटर. ओके, अब हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, एच लेंथ पूछी है. देन हमें सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मैनी यूनिट cells are there in 1.00 centimeter cube of aluminium. ओके, तो अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो सीसीपी के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, रेडियस एंड एच के बीच में. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो रिलेशन here a is equals to 2 root 2 r. तो यहाँ पे 2 root 2 की वैल्यू 1.41 एंड r की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आप अभी इसे पिकोमीटर में रहने दो, is equals to 125 पिकोमीटर. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 354 पिकोमीटर. ओके, अब ये तो हमारे पास आ गई a की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में. ओके, अब हमने सेकंड पार्ट में क्या पूछा, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम. तो इन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछा है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी वॉल्यूम कितनी है. तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a क्यूब एंड a की वैल्यू है 354 पिकोमीटर. तो इसका होल क्यूब कर दो एंड कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है. ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻23. ओके, सेंटीमीटर क्यूब.
पहले आपको इसे चेंज करना है 354 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स में चेंज करना है। देन आपको इन मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 10⁻² से, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर आपको करना है इस होल का क्यूब, तो यहाँ पे -10⁻10 आ जाएगी, उसका क्यूब करना है आपको, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने क्या पूछा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूछा ना, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करोगे, ये वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। ओके, सो क्या आ जाएगा आपके पास 1.00 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 4.4 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 2.27 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो जो आपके 2 दिन बच गए क्वेश्चन वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।